प्रेजेंटेशन दे सकते। नहीं अभी नहीं। आप तिलावत कर लीजिएगा। बोली सब ठीक है स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। We welcome you all to the corporate briefing session of Pakistan Reinsurance Company. We'll present a slide. We'll have a slideshow. It will be on the screen in just a few seconds. Okay. Can you just confirm? Can you see the presentation on the screen? Yes, we can see that. Okay. Thank you. Thank you. Okay. So the contents of the briefing are brief introduction of the company, business of the company, financial highlights for the year, business performance at a glance over the years, risk and challenges the business we are facing, and then we have question and answer section. So going straight to the brief introduction of the company, we were formerly called Pakistan Insurance Company. PRCL was established in 1952 to support the local industry. We are the sole reinsurance organization operating in Pakistan. We are a public sector listed company working under administrative control of Ministry of Commerce. Our objective is to develop insurance and reinsurance business in Pakistan. We provide reinsurance solution in aviation, marine, engineering, fire, and accident sectors. Uh, as a national reinsurer, we play a critical role in the development of Pakistan economy. Not only we are providing risk management to the local industry, but we are also ensuring that the foreign exchange required for the reinsurance is kept within the country. Our headquarters is in Karachi. Just reading out the vision to be the leading provider of reinsurance and risk management services in the region. And our mission is to provide secure insurance capacity, outstanding risk management advice in a profitable manner, and to conduct business in a dependable, professional way with highest standard of customer service. Uh, Going toward the state capital structure, our authorized capital is 25 million and issued and paid up capital is 9 billion. Our total assets are 76.36 billion and liabilities are 50.49, giving a net asset or net equity at 25.86. 51% of the shareholdings is held by federal government, 24.41 by state life, and the rest by individuals and others. Our book value per share is 26.7 as at 31st December, and earning per share was 3.48 per share. For board of constitution, we have one MOC ex officio, three government nominee, one state life nominee, and two elected. Business of the company, basically, we have two main line of business, treaty business and facultative business. In 2019, we also got Retakafel license, and we are also doing business in Retakafel operations. As pointed out earlier, we have treaty and facultative, and then the sub branches are fire, marine, engineering, aviation and aerospace, and accident. Business dynamics. So basically, coming toward the business dynamic, basically the main revenue drivers are the premium we get from facultative business. Similarly, we get the sorry premium from treaty business, then commission from retrocessionaries, which the business we place. After we get commission on this, then we have investment income, and then income from the Takaful business. Similarly, the cost drivers, we
hold certain portion of the risk with us and then we retrocede. Basically, we also reinsure ourselves in the international market, and that's called retrocession. Then one of the major expenses is a claim. Uh, Further, we have to give commission to the seeding companies and then management expenses. Financial highlights for the year 2025. Our gross premium was 31.9 billion. I'll also be elaborating a bit on the each item, which are more pertinent to our business. Our gross premium is 31.9 billion as compared to 24.7 billion. It's an increase of 29%. Major contribution on this business is on this is increase is from PIA, and then we have certain engineering business where we have got new business of around 3.5 to 4 billion. Our net insurance premium have decreased by 16% from 10.8 to 9 billion. The main reason here is because when we are insuring a large businesses like PIA and in engineering businesses, our retention capacity is limited. So there we have our gross premium increases, but on the other hand, the net insurance premium as a percentage is not that much. So that have decreased a little bit. Our net claims have increased from 5.4. It have in number term it have decreased from 5.4 billion to 5.3 billion. But as a percentage of the net premium, they have increased. Last year it was 50%. This year it's 60%. Coming to the management expenses, our management expenses have decreased by 333 million to 1.6 billion. And our underwriting result, because of the higher claim, is 919 million as compared to 2.4 billion. Our investment income have decreased slightly from 3.4 billion to 3.3 billion. It's a decline of 4%. And if we come to result from operating activities, it's 4.6 billion as compared to 6.6 billion. It's a decline of 29%. Our profit from window detakaful operation have also decreased because of the higher claims. It's 50 million as compared to 174 million in the same period last year. Profit before income tax is 4.7 billion and profit after tax is 3.1 billion. Last year, the profit before tax was 3.7 billion. So this makes our earning per share to 3.48 as compared to 4.2, a decrease of 17%. This is just a graphical picture of our business growth in the gross and net premium over the last 10 years. We have grown considerably from less than 10 billion in 2016 to around 30 30 billion in 2025. Similarly, our profit have also grown considerably over the last 10 years. It was around 1 billion in 2016, and over the period it have shown growth trajectory, and it is at 3.1 billion this year. So business performance at a glance over years. So our gross no. Okay. Okay, yeah. If you look at gross premium, we have shown a decent growth over the past 5 years. The net premium has been also increasing considerably. And if you look at the net premium ratio, this year it's 28% as against 44% last year, but the, our average has been around 30, between 30 and 32%. So it hasn't gone down considerably. Similarly, net claims as a percentage have hovered around 55%. The average is 55% over the past 10 years, but this year it's a slightly higher. Uh, uh, okay, investment income have, if you see the investment income, it has grown considerably over the past 5 years. Our investment portfolio have increased quite a bit.
The recoveries we have achieved in the past few years have resulted in higher investment income from fixed income securities. Okay, next slide. So our investment for total investment portfolio is 26.8 billion. Uh, Equity securities comprise 10 around 10 billion, and fixed income securities is 16 billion. Our weightage on the PIBs is 10.8 billion and T-bills 5.9 billion. We use held to maturity. Uh, we have held to maturity, so we will be continuing to gain benefit from the. We expect the punishment to be. So we'll continue to benefit from the higher PIB rates in the future also. This is uh, uh, our equity portfolio was 37%, uh, as against 29% in the last year, and fixed income portfolio have decreased from 71% to 63 billion. Uh, just a bit on the asset and liability side, our total assets and have grown. Similarly, liabilities have also grown, but not that much, giving net assets. The net assets standing is 25.8 billion. Next. Okay, some important ratios for the year. Our earning per share is 3.48. We gave a dividend of 1%. Dividend payout ratio is 29%. It's consistent with the our past history, barring last year. Our underwriting profit have declined as a percentage of net premium to 10%. Profit before tax have also declined as a percentage of net premium to 2%. But now net profit ratio, because of the uh, management expense, it's at 35% as a percent of net premium. Our return on equity is 12% as equity have increased. So the return on equity have come down a bit. And our earning growth is this year is almost minus 17% as against growth in the past 4 years. But going forward, we definitely foresee that the business will improve and earning growth will be there. Coming to the risks and challenges, basically our business directly face risk from the economic downturn. अगर हमारी इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, इंश्योरेंस आपके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, तो और आपकी जीडीपी ग्रोथ एज प्रोजेक्टेड इंक्रीज नहीं होती, तो उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे भी आता है. फिर देयर मेजर रिस्क ऑफ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट. पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि फ्लड्स की वजह से जो है वो एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से रिस्क जो है इंक्रीज हुआ है. गोइंग फॉरवर्ड भी ये दिस इज द मेजर रिस्क कि कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है जो कंसंट्रेटेड होता है, तो उसकी वजह से देयर इज अ रिस्क. सिमिलरली मार्केट कंपटीशन गोइंग फॉरवर्ड, अगर मार्केट्स ओपन होती है तो वी फोर्सी के और प्लेयर्स भी मार्केट में आएंगे इंश्योरेंस, एंड वी विल हैव मार्केट competition. Similarly, at this point in time, we are not facing any challenging outward USD remittance. But अगर और जो आपका सरप्लस भी इस वक्त मौजूद है, तो बट अगर हम ऑयल प्राइसेस इन्हीं लेवल्स पे रहती हैं और हमारे फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है, तो we might face challenges outward USD remittances. Similarly, investment market risk, it's related to the investment. हमारे अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है या इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और स्टॉक मार्केट में डिक्लाइन आता है, तो our shares are subject to market risk जो हमारी इन्वेस्टमेंट है. This is basically the last slide. हमारे पास before going towards the participants for questions, हमारे पास कुछ questions आए थे, मैं हम उसको आंसर कर लेते हैं.
एक अच्छा, these were the questions which we received in advance. innovation. जी, ये वो क्वेश्चन है जो हमें एडवांस में रिसीव हुए थे। मैं फ्रॉम लेक्सन इन्वेस्टमेंट हमें रिसीव हुए थे फ्रॉम, ठीक है, ठीक है। पहले व्हाट हैपेंस टू प्रॉफिटेबिलिटी इफ कैपिटल मार्केट्स वीकन। अच्छा, इसमें जिस तरह अभी आपने देखा, जो हमारा पोर्टफोलियो है, इट्स मोर टिल्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो अगर वहां पे डिक्लाइन आता भी है तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट तो आएगा। बट सिंस आवर मेजर पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज इन फिक्स्ड इनकम, और उसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वी डोंट सी कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली जो पास्ट 2-3 इयर्स में जो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से जो बेनिफिट था वो डाइल्यूट हो रहा है, बट इसकी वजह से वी डोंट सी मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर पोर्टफोलियो। फिर अगला सवाल था कि अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग कंपोजिशन। तो इसमें बता दो, इंश्योरेंस रूल्स 2017 के तहत एडमिसिबिलिटी ऑफ एसेट्स फॉर सॉल्वेंसी है, तो हम उसी को बेंचमार्क रखते हैं। और अराउंड हमारा जो पोर्टफोलियो है, 50% तक हम इक्विटी में जा सकते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो वहाँ 100% तक हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जा सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड पीआरसीएल नेट प्रीमियम रिटेंशन रेशियो फॉल शार्पली। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीईओ मोदी साहब को कि वो थोड़ा सा इस पर ब्रीफ करें। अच्छा, 2024 में कुछ हमने ऐसी कुछ आपको जो लॉस रेट, आपको जो रिटेंशन रेशियो बहुत ज्यादा नजर आ रहा था, 44%, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसकी रीजन ये थी कि काफी बड़ा प्रीमियम हमारा जो है एक 2023 में राइट हुआ था, और उसकी कंटिन्यूटी की वजह से उसका अर्न का इम्पैक्ट उसका 2024 में तो आया। तो बुकिंग पहले की हुई थी, उसकी वजह से नेट रिटेंशन हमें अच्छी नजर आ रही थी 2024 के अंदर। लेकिन जैसे आप देखेंगे कि जो जो कि हमारी रूटीन एवरेज है बहुत ज्यादा था, 44%। यूजुअली जो हमारी रिटेंशन रेशियो रहता है इस 30 के अराउंड होवर कर रहा होता है, 28, 29, 32 इस तरह से होवर। तो 5-6 ईयर आप ट्रेंड भी देखेंगे तो यही रहेगा 2024। तो और उसकी रीजन ये थी, बहुत सारा एक बड़ा बिजनेस था जो पहले 2023 के ईयर एंड पे बुक हुआ था, इसके बाद 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में बुक हुआ। फर्दर कुछ और भी बिजनेसेस थे, जैसे नवी साहब ने इंडिकेट किया कि देयर आर सम पावर प्लांट्स, तो उनकी हमारे पास जब न्यू बिजनेसेस आए 2025 है, तो हमारे ग्रॉस को तो इन्होंने शूट किया, but keeping in view our retention levels, city capacities, and as a prudent risk management approach, हमने उनको और our expert to manage our exposures, वो हमने फिर उनसे हमें reinsurance ज्यादा फेस करनी पड़ती है। तो that were mainly from public sector। तो that is why हमारा retention ratio आपको for the year 2025 is seen quite lower than the 2024। अच्छा, एक पॉइंट में इसमें जो फर्स्ट सवाल था उसमें कंटिन्यूएशन में एक फर्दर एक पॉइंट था कि 71% ऑफ द टोटल ऑपरेशन रेवेन्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट से डिराइव हो रहा है। अच्छा, बेसिकली दिस इज ये एक हमारी इंडस्ट्री है, उसका एक नॉर्म है। अगर हम टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज को लोकली देखेंगे तो वहां पे हो सकता है ये परसेंटेज जो है 70% से भी ज्यादा हो। और ग्लोबली भी अगर हम बड़े री इंश्योरेंस कंपनीज को चेक देखते हैं तो वहां पे भी जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो मेजर ड्राइव हो रही है वो इन्वेस्टमेंट इनकम से ही ड्राइव हो रही होती है। ये बेसिकली दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। आप हमारे जो भी टॉप 5 इंश्योरेंस कंपनीज की आप अगर बुक्स देखेंगे तो वहां पे आपको यही नजर आएगा कि पिछले साल भी बहुत ही कम अंडरराइटिंग प्रॉफिट हुआ है कंपनीज का, बट ऑन द अदर हैंड उनकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो सिग्निफिकेंटली हाई है। लास्ट क्वेश्चन जो हमें रिसीव हुआ था, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द पीआरसीएल कंसीडर द गेन रेशियो राइज फ्रॉम 50 to 60% to be structural in nature, rather than to be a structural trend rather than a short term fluctuation। इसके लिए भी मोती से अब जी, this is a bit short-term projection. Usually, our loss ratio hovers around 50-55%. So last year was not a good year for in this context. थोड़े से कुछ बड़े लॉसेस थे, कुछ पिछले सालों की भी कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, जो आप लॉस एस्टीमेट्स रिवाइज होते हैं या रिटो रिकवरीज इफेक्ट हो रही होती है,
तो दैट इज वाई थोड़ा सा इस पे प्रेशर ज्यादा था, लॉस क्लेम्स एक्सपेंस भी हमारे 2025 में, बट इट्स नॉट अ रेगुलर फिनोमिना. यूजुअली यू सी आवर लॉस रेशियो, in most of the cases it remains within the range of 50s. So 55%, 54%, 52% इस रेंज में रहता है. वरना पीछे पास में रहा है कि 75% तक भी गया है, बट यूजुअली इट्स अराउंड 50-55%. जी जी. Yes. Yes, sir. Can you hear me? जी जी, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी प्लीज करवा दीजिए क्या? Yes. Sir, this is Abdul Moiz from Maple Leaf Capital. Sir, मेरे दो क्वेश्चंस हैं. My first question is, बल्कि तीन क्वेश्चन हैं. My first question is regarding the SPR issue जो आप लोगों का काफी अर्से से चल रहा था. सर मुझे उससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी. that what is the current status and हम कब तक इसको रिजॉल्व होता देख सकते हैं, और मुझे आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि हम इसको किस जगह पे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस को. ऐसा अच्छा, बेसिकली इशू इज ऑनगोइंग. हमारी काफी मीटिंग्स हुई हैं एसआरबी के साथ और आईएपी को भी हमने किया है. बेसिकली ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, इट्स इंडस्ट्री वाइड इशू, क्योंकि री इंश्योरेंस के ऊपर सेल्स टैक्स का इशू है. उसके मैकेनिज्म में भी इशू है. इस पे काफी डिस्कशंस रही हैं पिछले दोनों में भी. बट इसमें ये है कि इट विल टेक सम टाइम, इट विल से टेक टाइम, क्योंकि इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और बाकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है. इट्स इशू तो हमारे ऊपर ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है, बट इट्स इंडस्ट्री वाइड इशू. दिस इज सब जुडाइस, हमने इसको चैलेंज किया हुआ सिंध हाई कोर्ट में, तो अभी वहां पे कंक्लूड नहीं हुआ ये इशू. चेट पे जो क्वेश्चन आए वो रीड आउट. सेकंड क्वेश्चन आपको. जी सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है सर, बेसिकली मैंने पता करना था कि ऑब्वियसली व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं और क्लेम्स भी उसी तरह आप लोगों को आते ही होंगे. तो मुझे ये कंफर्म करना था कि आप किस तरह इसको बैलेंस आउट करते हैं, एंड इन द फ्यूचर व्हाट डू यू सी के इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से कंपनी को एज अ होल फायदा होगा या फिर क्लेम्स ज्यादा आने के चांसेस हैं. अच्छा, बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो उसका क्लेम से एज सच लिंक नहीं है. इट्स आप अगर पिछले 10 साल का अगर आप क्लेम रेशियो अगर हमारा देखेंगे तो जब इंटरेस्ट रेट 22% भी था तो हमारे उस वक्त, सॉरी डिस्काउंट रेट जब 22% भी था तो हमारा क्लेम रेशियो 52-54% था. और जब सब्सिक्वेंटली कम भी हुआ है तो भी कुछ बहुत ज्यादा क्लेम रेशियो इंक्रीज नहीं है. तो और मेनली ये बहुत ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होता है इंटरेस्ट रेट से. ये ज्यादा जो हिस्टोरिकल हमारा लास्ट 10 इयर्स, लास्ट 15 इयर्स को हम इसको बेंचमार्क करते हैं और उसी के अराउंड ही रहता है. वन ऑफ कभी कुछ इवेंट्स की वजह से इम्पैक्ट ज्यादा आ जाता है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू द हाई इंटरेस्ट रेट्स. Okay. So my last question is, what is the estimated return on fixed income assets? Is it closer to KIBOR or is it greater than KIBOR? It's greater than that. So how much greater? Like 1-2% greater, or इट्स can you अराउंड give? 100 to 150 बिप्स. अगर देखिए इस वक्त आप करंट पोजीशन में देखेंगे तो इस वक्त तो काइबार इंक्रीज हो गया, तो इस वक्त से अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली वो डेल्टा जो है वो थोड़ा कम होगा. बट एज एज ए दिसंबर अगर हम जाए तो वो अराउंड 150 बिप्स तो बिल्कुल था. और क्योंकि आप जैसे प्रेजेंटेशन में ही बताया कि वी आर ट्रेटेड टुवर्ड्स पीआईबी, और ये वो पीआईबीज हैं जो हमने हाई रेट पे बुक किए थे. तो गोइंग फॉरवर्ड भी एक्सपेक्ट कि हम काइबोर प्लस ही रहेंगे इन फिक्स इनकम. All right. Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू. So moving forward to the second things now, calls I want to where do we have any plans for the construction of? अच्छा, एक सवाल आया है कि ओल्ड पीआरसी बिल्डिंग के हवाले से कि उसका कोई कंस्ट्रक्शन का. तो बेसिकली इसमें सिर्फ हम ये कहेंगे कि हम वी आर ऑन एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट एंड वी हैव सम कोवेनेंट्स जिसकी वजह से वी कांट परसू many business plans accordingly, but obviously different plans are in place कि उसको किस तरह हम हैंडल करें, but at the moment there are no plans. I think that the same on the same from the first one is taking the catastrophic events that are crazy, which topic is taking to mitigate this.
Yes. Just Review the catastrophic event. Yes, we have our catastrophe treaties that cover us for property catastrophe losses. And we have substantially increased those limits during last 10 years. So presently our catastrophe treaty limits are adequately placed, and we set those limits or purchase those reinsurances for catastrophe losses based on our risk modeling. So these are adequately covered in fact. The second question is that in terms of substantial decline in profit from window in the couple operation. बेसिकली रीजन वही है कि जब आपका क्लेम्स इंक्रीज होते हैं, बेसिकली हमारी जो बिजनेस है इट्स नॉट सब्सटेंट, काफी ज्यादा इसमें नहीं है, तो इसमें अगर वन ऑफ कोई बड़ा क्लेम आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा होता है, बट गोइंग फॉरवर्ड दिस ईयर इज आई थिंक क्लेम्स के हिसाब से बिल तकाफुल में इम्पैक्ट ज्यादा है. गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट के जो क्लेम रेशियो है वो सेम रहेगा एज इन द पास्ट 4-5 ईयर, बट ऑब्वियसली इस बिजनेस को मेच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड वील हैव क्लेम हिस्ट्री, तो उसकी वजह से विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मैनेज आवर रिस्क. Next question we have from Evan Mustafa. He says, "What is on aligning the profit from towards investment income? This is an insurance company, and I had this management perspective classing towards the insurance revenue and linking the company more towards core operations of the companies." अच्छा, बेसिकली यही पॉइंट जो है मैंने पहले भी शुरू में अभी डिस्कस किया था कि अगर आप लोकली भी और ग्लोबली भी अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस और इंश्योरेंस बिजनेस को देखेंगे तो वहां पे मेजर जो बिजनेस जो प्रॉफिटेबिलिटी डिराइव होती है वो आपके इन्वेस्टमेंट इनकम से होती है. इसका मेन रीजन मैं बता दूं, इनहेरेंटली वी आर इन द बिजनेस ऑफ रिस्क टेकिंग. हम एक रिस्क टेक कर रहे हैं. बाकी कहीं पे भी आप कोई भी बिजनेस देखेंगे तो वो एक ऑपरेशनल उनका बिजनेस होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या सेल्स का बिजनेस है जिसमें उनको सेल करनी है और उससे प्रॉफिट. हम बाय डिफॉल्ट हमारा जो बिजनेस है इट्स बिजनेस ऑफ रिस्क टेकिंग. सो क्लेम इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. इस जो बेसिकली जितनी भी कंपनीज है, अगर हम मैं नाम ले लेता हूँ, जुबली जनरल इंश्योरेंस को अगर हम देखें तो उनका टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6.5 बिलियन था और उनका इन्वेस्टेड इनकम 6 बिलियन थी. सिमिलरली at 2%. 92%. सिमिलरली आदम जी इंश्योरेंस का देखें तो उनका इन्वेस्टमेंट इनकम 6 बिलियन थी और टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो 7.5. इंटरनेशनली अगर हम जाएं तो मेनली का 91% है इन्वेस्टमेंट इनकम as from the profit before income tax. Similarly, Swiss Re का भी 74% है. Basically, we are just part of the industry जो जिसमें ये चीज फॉलो हो रही होती है, और we over the period of time जो हमने रिजर्व्स और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हमने डेवलप किया होता है कि we benefit from that, and apart from that जो हमें अब जो कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आ रहा होता है, हम उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. और क्योंकि क्लेम की प्रोसेसिंग और क्लेम आने में जो टाइम लगता है, तो दैट्स द बफर वी हैव टू मैनेज आवर कैश फ्लोज. सो दिस इज बेसिकली द इंडस्ट्री नॉर्म. Another question we had from Bharat Pacha is that the regulation notice people see on draft insurance value partners see promotion of private insurance in the country. How do you see the competition to be growing at this? Private insurance for public sector insurance है, private reinsurance private. Yes, we know. First of all, ये आप नोट रखें कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जितनी री इंश्योरेंस होती है that is only done by Pakistan Reinsurance Company. Okay? पाकिस्तान में ऑलरेडी फॉरेन प्लेयर्स काम कर रहे हैं, इनको ट्रीटी के अंदर भी और फैकल्टेटिव सेगमेंट में भी उनका एक इनको रीजनेबल शेयर उनको जाना होता है. ठीक है, PRCL इज नॉट दी सोल. PRCL is the only local or public sector reinsurance company of Pakistan. So they are already working. The Pakistani market is already securing reinsurance capacity from international market as well, apart from PRCL. अच्छा, दूसरी चीज उसमें अमेंडमेंट्स में कुछ बिल्स हैं, इस पे हमने फीडबैक दिया था. दो वी डू नॉट सी good reason or a large number of influx from international reinsurance to open their branches or set up their office in Pakistan, we do not see because of
different reasons. Yes, there may be a couple of new insurance companies operating who may set up their offices or who may obtain licenses to operate locally from Pakistan. But we will manage that. हमारे पास काफी सारी चीजें हैं, जो इंडस्ट्री डेटा है, एक्सपीरियंस है, और जो लोकल कंपनीज के साथ हमारे, जो प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ हमारे रिलेशनशिप्स हैं, और तो वो वी डू नॉट सी देम एज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर पीआरसीएल. My question is from Anwar Hussain from Jay Security. He says, what is the market share of coffee in Pakistan? It's Market share of Pakistan insurance company. Pakistani market and context is what? Market share. it's around 25%. He further is the question. अच्छा, एक मैं कमिंग बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन जो री इंश्योरेंस मार्केट के प्ले की बात की थी, वी सी इट्स अ गुड स्टेप, क्योंकि एक तो दो बेनिफिट है. एक तो दिस विल ब्रिंग अ हेल्दी कंपटीशन, और डेफिनेटली द बिजनेस वी आर डूइंग विल डेफिनेटली इंप्रूव ऑन दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, के जो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर आउटफ्लो हो जाता है, वो भी यहाँ पे रिटेन होगा. और प्लस जो बिजनेस, we'll also get the opportunity to partner with the other reinsurance company, और हम उनके साथ भी पार्टनर करके हम उनसे बिजनेस भी पूल कर सकते हैं. Okay. Moving towards the next question. Keeping in view the climate change and flood occurrences, how insurance industry you are planning to manage this risk? So I have already responded to a similar question, that we purchase catastrophe reinsurance covers to mitigate our catastrophe related risks or loss exposures. We have hundreds now Supreme Court now. Please ask your question. Assalamualaikum. Am I audible? So, थैंक यू सो मच. अच्छा, जैसे आप लोगों ने अभी मेंशन किया कि इन्वेस्ट, प्लीज इंट्रोडक्शन करवा दें. अच्छा, सुकलान प्राचा फ्रॉम एआरएन फाइनेंशियल्स. Okay. जैसे अभी आप लोगों ने मेंशन किया कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटली ज़्यादा डाइवर्टेड टुवर्ड्स फिक्स्ड पीआईबीज और टी-बिल्स की तरफ आ जाती है. तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो पीआईबीज वाला जो पोर्शन है आपका अराउंड कोई 10 बिलियन तक का, उसमें फिक्स्ड वाला पोर्शन कितना है और फ्लोटिंग वाला कितना है, और अगर कोई फिक्स वाला पोर्शन ज्यादा है तो उसके ऊपर कितनी आप यील्ड जनरेट कर रहे हैं, और मेच्योरिटी टाइम पीरियड उसका क्या है, और प्लस जो अभी इंटरेस्ट रेट्स का इंक्रीज हुआ है 100 बेसिस पॉइंट्स का, उससे जो है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ऑब्वियसली क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो टोटली लिंक टू इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आ जाती है, और वो भी टोटली जो है वो लिंक टू फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज आ जाती है. तो उस चीज़ को थोड़ा देखने के लिए मैं ये चीज़ें पूछ रहा हूँ. और फ्लोटिंग वाला भी काइंडली अपना पोर्शन बता दीजिएगा, और उसके ऊपर क्या आप स्प्रेड जनरेट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. और माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी रिगार्डिंग ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, कि उसके अंदर आप क्या ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के अंदर, अगले 1 साल के लिए या अगले 5 साल के लिए, ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी कंसिडर करते हुए. थैंक यू सो मच. अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि हमारा जो पोर्टफोलियो था वो हेल्ड टू मैच्योरिटी होता है. और हमारा जितना भी फिक्स इनकम का पोर्टफोलियो है, इट्स सॉरी फिक्स इनकम का पोर्टफोलियो है, वो पीआईबी में फ्लोटिंग रेट पीआईबीज में नहीं है. तो जो इसका एवरेज इस वक्त रिटर्न है वो अराउंड 14.5% है फिक्स इनकम पोर्टफोलियो का. और गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक जिस तरह इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो वी हैव एम्पल लिक्विडिटी के हम फर्दर इसको लॉन्ग टर्म में हम इसको प्लेस करेंगे. वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमी को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और एट द राइट टाइम विल डिसाइड टू गो इन फिक्स्ड इनकम पीआईबीज. और अगर हम इसकी टाइम टू मैच्योरिटी देखें, तो हमारा जो पोर्टफोलियो, जो पीआईबी का पोर्टफोलियो, इसका वेटेड एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी इज स्लाइटली लेस देन 4 years. sure. About your question about this expected premium growth, तो थोड़ी सी चीज मैं क्लियर कर दूं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो डायरेक्ट इंश्योरेंस का नॉन लाइफ का प्रीमियम जिस रेशियो से ग्रो करता है, तो री इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका उसी सेम परसेंटेज से ग्रो करे. बिकॉज उनकी जो री इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती है फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स और बिगर फॉर बिग टिकट साइज रिस्क, नॉट फॉर स्मॉल साइज.
So for example, if Pakistani insurance market or general insurance market grows on the basis of growth in motor premium or not from property, तो फिर PRCL का प्रीमियम उस रेशियो से ग्रोथ नहीं करेगा. But on the other hand, if Pakistani insurance market grows, and this comes mainly from property or aviation or some on those risks who have bigger ticket size. So in that case, PRCL या और other reinsurance premium पाकिस्तान का वो भी ग्रो करेगा. So and another thing, वो हमने जैसे आपको शुरू में बताया कि ये डिपेंडेंट होता है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी. जैसे माइक्रो आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आपकी जो इन्फ्लेशन और आपके जो ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ है, उससे काफी लिंक होता है. यस, वी एक्सपेक्ट कि अगर आपका जीडीपी ग्रोथ से हम ज्यादा ही ऑलमोस्ट डबल हमारी ग्रोथ होगी पाकिस्तान की इंश्योरेंस कंपनी की. दैट्स आवर एस्टिमेट्स. Another question that I have is in terms of securities, like why insurance companies insure come for it? या बिकॉज अच्छा, बेसिकली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कंपनी पे ही फोकस रहें तो ज्यादा बेहतर है. बट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेंट मैं बता सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ कि अगर एक 100 बिलियन का एक रिस्क है, वो एक कंपनी उसको इंश्योर करती है और उस पर पूरा 100% लॉस आ जाता है, और तो इफ दैट कंपनी पेज 100 बिलियन, तो जो अगर सिर्फ मैं अपनी कंपनी की इक्विटी देखूं तो इट्स 25 बिलियन, बाकी कंपनीज की तो और भी कम होगी. तो बाय वर्च्यू ऑफ गुड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, ये यहाँ से इंटरनेशनली फॉरेन प्लेयर्स को हम प्लेस करते हैं. वहां पे भी सिंगल री इंश्योरर नहीं होता है, वहां पे भी सिंगल रिस्क जो है वो कम से कम 7 to, जो लार्ज रिस्क होते हैं वहाँ 7 to 8 और समटाइम 20 री इंश्योरर्स तक वो प्लेस हो रहा होता है. तो इट्स बेसिकली डिसबर्समेंट ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ द रिस्क अमंग the reinsurers of the world. तो रिस्क स्प्रेड का बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस. अगर आप सारा रिटेन एक कंपनी या एक मार्केट में रह जाए तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, ये इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होता है. तो इंश्योरेंस कंपनी जिस तरह सारा का सारा अपने पास रिटेन करे, री इंश्योरेंस ना करे, ये पॉसिबल नहीं है. या अगर किसी एक इंश्योरेंस री इंश्योरेंस कंपनी को प्लेस करे तो वो एक ही जगह पे रिस्क कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जो है इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है और ये वायबल भी नहीं है. So we do not have any current. Any other questions from the? अच्छा सर, काइंडली वो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी दोबारा मेंशन कर दीजिएगा. मेरे ख्याल में कोई 4 years आप मेंशन कर रहे थे पहले. 4 years जो PIB की है वो 4 years. थैंक यू. Anything else? I think we are done. So आप closing. चले, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन. वी आर ग्लैड कि आपने काफी सारे सवाल किए और आपने पेशेंटली हमसे डिस्कस भी किया और हमारी बात भी सुनी. और फर्दर भी कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क अस. आप हम यहाँ से आप हमारे नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस दे सकते हैं. फर्दर कोई भी क्वेरी हो यू कैन डेफिनेटली send them to us. Thank you so much. Thank you.